से हमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। मैं ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो ऑफ द सेशन विद ऑल ऑफ यू, एंड ऑल्सो इट विल बी लाइव ऑन यूट्यूब. So that's why we can say selling is the process where we can satisfy the needs of the customer. नहीं तो हम कस्टमर को सर्व कैसे करेंगे? That's why selling is not just the revenue earner, it's a noble activity by us because we are serving our customer. We are satisfying our client, and if one client is getting satisfied, then 10 more clients will also come. So we need to understand that sales is nothing but satisfying the clients. Sales is fulfilling our purpose. So that's why it is the biggest opportunity. So ये है the biggest opportunity, but still there are challenges. There are challenges in sales. It can be internal challenge, it can be external challenge, it can be challenge within us, with the team. It can be maybe conversion. So what are your top challenges? अगर आप एक बार अपने नोट्स में लिखिए, बिकॉज ये सिर्फ वन वे स्ट्रीट नहीं होगा, इट इज मोर ऑफ एन इंटरेक्शन. हम एक दूसरे से समझने के लिए यहाँ बैठे, यहाँ पे जो है आए, so that we can learn from each other, we can share our wisdom, or we can go ahead. So write down the challenges, and also because we are here, we will be discussing about addressing those challenges in next half an hour. We will be giving you, I will be giving you a blueprint which will help you in addressing your challenges with respect to sales we are talking about. Because if we are sorted with the sales, then many of the things will be taken care in our organization. And it is one of the most crucial functions in the organization. What do you think, Singh sir? Why sales is the most crucial function? Do you feel that? आपको क्या लगता है, KP Singh जी? Yes, it's a very crucial and it's unavoidable basically in any business. Okay, great. So I think Ashwini ji and his team is also there. So welcome all of you. The team members are there. I'm seeing them. Some of them are sitting there in their conference room. So welcome everybody. It's great to see you together. Same to you, sir. Thank you. See you together learning. That's really nice, because which is the best investment in this world? It is the learning. Self-development is the best investment. And Yes, sir. I feel that all of you are doing wonderful. Those who are here today, they are actually having the best ROI because they are developing themselves. So I'm really happy that all of you are here showing your commitment. So let's have a big round of applause for all of you. बहुत अच्छा है, तो हम लोग ऐसे राउंड ऑफ अप्लॉज कर देते हैं तो दिख जाएगा सबको. तो थैंक यू. सो लेट्स मूव अहेड. अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि सेल्स चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर योर टॉप चैलेंजेस, और एवरीबडी हैव नोटेड, मे बी नोटेड डाउन. तो अभी नोट सबने कर लिया है. So let us discuss. One of you can share one challenge which you are facing in your sales process. कोई एक challenge आप share कर सकते हैं कोई भी जना. तो नीलेश जी, you want to discuss what's your top challenge? Yes. Lack of proper follow-up with clients. कई बार हो जाता है, we give them quotations, but our team or the salesman is not properly following up with them, whether the requirement has been fulfilled or हमारी offer if it is not up to their mark, what is lacking. तो उस वजह से कई बार conversion नहीं होता. Absolutely, lack of proper follow-up is a very important point. कि सारी मेहनत कर देते हैं लेकिन बाद में अगर कहीं से फॉलोअप नहीं हो पाता है या हम नहीं करते हैं तो वो सारी जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाती है और फिर से दोबारा से वो चीजें दोबारा से करनी पड़ती हैं. तो अगर शादी करने के बाद जो है वो अगर हम अपने एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, उससे और मेंटल डिस्टर्बेंस होती है. सेम वे वही चीज है, अगर हम अपने सेल्स का स्टार्ट कर दिया लेकिन बाद में फॉलोअप नहीं करते
So that is actually not helping us. Just we need to take care of that. So that's a very good point which you have stated, and we'll discuss this point in detail, how to address this point. तो अगर हम देखते हैं, मेरे ख्याल से we all have faced many challenges, and these are the common challenges. Am I audible to all of you? आवाज क्लियर है? Yes, it's clear for me. थैंक यू, क्योंकि एक मैसेज मुझे आया था, तो मुझे लगता है उनके एंड पे कुछ ट्रबल होगा. व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि आवाज का कुछ. ओके, ग्रेट. सो नाउ, सो दीज आर द फ्यू मोर चैलेंजेस व्हिच आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, और ये आप लोग भी महसूस करते होंगे. कभी कभी आपको ये चैलेंज आया होगा या आ रहा होगा, जैसे टू मैनी लीड्स बट वेरी लो कन्वर्जन. अभी हम लीड जनरेशन पे, इस सेशन में लीड जनरेशन पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने उस पॉइंट को अभी नहीं लिया है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ इंटरपर्सनल सेल्स का ये सेशन है, पर्सनल सेलिंग का ये सेशन है, सॉल्यूशन सेलिंग का ये सेशन है. तो अगर हम सॉल्यूशन सेलिंग और पर्सनल सेलिंग में देखें, टू मैनी लीड्स होती हैं लेकिन कन्वर्जन जो है वो कम होता है, या काफी मेहनत करनी पड़ती है कन्वर्जन में. ये चैलेंज है, कॉमन चैलेंज. दूसरा है कि कन्वर्जन टू मीटिंग रेशियो इज वेरी लो. मतलब मीटिंग जो है वो कम होती है, या मीटिंग जो है, मीटिंग हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ती है कन्वर्जन के लिए. तो ये एक और हमारा चैलेंज हो सकता है कि लीड्स है लेकिन मीटिंग बहुत बार करनी पड़ती है. तो ये है. फिर नॉट अचीविंग द डिजायर्ड सेल्स. सेल्स जो हमें चाहिए या बिलो पोटेंशियल सेल्स हो रही है, और या फिर प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा नेगोशिएशन पुअर कि मार्जिन्स कम होते हैं वाइल सेलिंग, हम लो प्राइस में बेच देते हैं. तो ये सारे कॉमन चैलेंजेस हैं, isn't it? Have we faced, are we facing these kind of challenges? I think we are facing. Welcome, Ajit. You are also here, so you are welcome to this session. Now coming further, so if we see how we can address these challenges, अब मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दूंगा और उसको आज हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट हाफ एन आवर में कि उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी आर ऑल आर हियर फॉर एप्लीकेशन. नॉलेज तो ये कहीं से भी मिल सकती है, ये चीजें मैं कोई नई नहीं बता रहा हूँ. मेन चीज जो हम लोग यहाँ आए हैं वो हाउ टू अप्लाई दीज थिंग्स, और व्हाट वी नीड टू डू इन नेक्स्ट 1 month, 2 months और 6 months टाइम पीरियड, so that we are able to improve our process, and then our sales will also improve. तो ये चीजें जो है वो आज जरूर आप लोग जो है कुछ जानोगे, कुछ आप उसको मानोगे और कुछ आप अपनाओगे, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली अपनाना पड़ेगा. जैसे नीलेश जी कहते हैं ना, फॉलो अप, तो फॉलो अपने आप से भी करते रहना पड़ेगा. जैसे अगर आप रोमांस में होते हो, डू यू फील दैट यू आर रोमांटिक, डू यू लाइक बीइंग इन रोमांस? यस, हम सब लोग ये चाहेंगे, और ये आपकी लाइफ है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सेल्स है, उससे भी आप रोमांस करेंगे. आप सेल्स को भी लव करेंगे, सेल्स को भी पैशनेटली करेंगे, तो ये चीजें जो है आपको याद नहीं रखनी पड़ेंगी, अपने आप ही होती जाएंगी. तो ये मैं शुरू में यही बोलूंगा. अब ये चीजें को याद रखने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, बहुत सिंपल है. 4 स्टेप्स हैं जिसमें हम एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, और एक YouTube का लिंक भी दिया गया है अभी चैट पे, वो आप सब लोगों के लिए कि बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे वीडियो YouTube लिंक पे है, तो पीपल यू कैन यूटिलाइज दैट. आप जब चाहे उनको देख सकते हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए. तो अभी वापस आते हैं, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस इश्यूज. यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग इट, आपने अपने चैलेंजेस लिखे हैं. सेकेंड इज डेवलपिंग स्मार्ट गोल्स एंड प्लान ऑफ एक्शन. जब हम अपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर काम करने लगते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें उससे रिजल्ट लेके आना है. अगर हम स्मार्ट गोल्स नहीं बनाएंगे तो उससे रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आएंगे. सो दैट्स व्हाई सेटिंग स्मार्ट गोल विल हेल्प अस इन हैविंग क्लैरिटी इन गेटिंग द रिजल्ट्स. Smart goals are nothing but it is giving us a clear picture of what we want in next 6 months to 1 year time period. Sometimes we can say that things are very uncertain. How can we set smart goals?
I know things can change, things are changing. But we need to have our own stand that what we want in our life, what we want from our organization. So SMART goals help in doing that. SMART means specific, measurable, attainable, realistic and tangible. मतलब स्मार्ट गोल्स का मतलब हो गया गोल ही नहीं, सिर्फ आपको प्रोसेस भी क्लियर करना है. सेटिंग गोल्स इज नॉट यूजफुल इफ वी आर नॉट क्लियर विद द प्रोसेस. अगर गोल सिर्फ गोल ही सेट करना है तो आप मत सेट करें. वी नीड टू एंजॉय द जर्नी एंड फॉलो द राइट प्रोसेस. जो जर्नी है वो प्रोसेस है उसको फॉलो करना, वो स्मार्ट गोल्स में आएगा. वो हम उस पर भी आते हैं और उसमें प्लान ऑफ एक्शन भी आएगा. तो विल डिस्कस द सेल्स प्लान ऑफ एक्शन टुडे. जैसे पिछले सेशन में मैंने एक इंट्रोडक्शन सेशन दिया था लीडरशिप का, उसमें कुछ हमने लीडरशिप के पॉइंट्स डिस्कस किए थे. आज हम सेल्स स्पेसिफिक प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे. एंड ऑफ कोर्स ये जो चीजें हैं वो कई बार हमारे खुद के ऑब्स्टेकल्स होते हैं माइंडसेट के. तो टुडे आवर फोकस विल बी मोर ऑन सेल्स बिहेवियर के जो माइंडसेट होती हैं, क्या जरूरी माइंडसेट है, क्या जरूरी स्किल सेट है. दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो ये बिहेवियर चेंज किन एस्पेक्ट्स पे ला सकते हैं, कौन से बिहेवियर हमारे सेल्स के लिए जरूरी होती हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में भी बात कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश. इंग्लिश क्योंकि यही कॉमन है, यही सब लोग को आई थिंक ये कंफर्टेबल है. सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस बोथ लैंग्वेजेस. सो मेजरिंग द आरओआई एंड रिजल्ट्स. तो गोल सेट करके अगर रिजल्ट्स को मेजर नहीं करेंगे तो वो गोल्स, स्मार्ट गोल्स भी कोई काम के नहीं होंगे. तो लेट्स हैव अ टाइम, वीकली टाइम दीजिए, चाहे फ्राइडे या सैटरडे कुछ 1-2 घंटे लगाइए. क्या रिजल्ट आया उस वीक में, महीने में क्या रिजल्ट आया. तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको हमें पूरा करते रहना. जैसे अभी कोई गेम खेलते हैं ना, अभी T20 खत्म हुआ है वर्ल्ड कप, हम लोग बहुत उसको इंटरेस्टिंगली देखते हैं कोई भी स्पोर्ट्स, क्योंकि उसमें स्कोर होता है, उसमें हमें पता लगता है कि क्या उसकी परफॉर्मेंस है और एकदम क्लैरिटी हो जाती है. इजंट इट कि भैया ये टीम इतना जीती है, इसने वर्ल्ड कप जीत किया, क्योंकि उसने जो है ये पूरा स्कोर और पूरा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो वही चीजें हमें अपने लिए भी करनी है. अगर रिजल्ट स्कोर के फॉर्म में आएगा तो हम भी मोटिवेटेड रहेंगे कि अच्छा चलो अभी हमने इतना पाया, अभी ये हमें और करना है फॉर अचीविंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ रिजल्ट्स. तो दैट्स व्हाई दिस ब्लूप्रिंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. और इसको हमने एक नाम भी दिया है सॉल्यूशन सेलिंग का. सॉल्यूशन सेलिंग इज लाइक वी आर आइडेंटिफाइंग द नीड्स of the clients and then accordingly we are offering our solution to the client. So we are client centric. client को क्या चाहिए और उसके अनुसार हम उनको दे रहे हैं. और ये जो 4 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे ये अपने इंटरनल है, ये क्लाइंट से रिलेटेड नहीं है, हमारे इंटरनली रिलेटेड है कि हमें अपनी सेल्स प्रोसेस के लिए क्या करनी है ताकि हम क्लाइंट को बेहतर सॉल्यूशन दे सके, हमारी सेल्स भी बेहतर हो, दोनों तरफ से विन विन हो. क्योंकि अगर सिर्फ एक पार्टी जीतेगा एक पार्टी हारेगा, ये ऐसा गेम नहीं है. इस गेम में सभी को जीतना है. सेल्स का ऐसा गेम हमें खेलना है जिसमें सब लोग जीते. तभी तो कहते हैं ना राम राज्य वो हमारे हाथ में है. वो तो ऐसे नहीं है कि कभी कोई आएगा राम राज्य तो हमारे ही हाथ में. अगर हम ऐसा काम करें जिसमें सब लोग जीतने लग जाएं, दैट इज राम राज्य. और वो सेल्स वाला प्रोसेस ही है ऐसा, अगर सॉल्यूशन सेलिंग को हम फॉलो करेंगे कि वी आर क्लाइंट सेंट्रिक. तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो भी दिखाऊंगा, वो परफेक्ट एग्जांपल है सॉल्यूशन सेंट्रिक का. तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी बोलोगे हाँ ये तो बड़ा जबरदस्त है. मैं आता हूँ अभी उस पर. उससे पहले आप ये देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है ब्लूप्रिंट. अगर आप देखते हैं कि इट हैज बिकम वेरी क्रिटिकल. बहुत सारा डेटा इसलिए दिया है क्योंकि कई बार डेटा भी हमें चाहिए होता है समझने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए. $1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है, 1 बिलियन भी नहीं है. 1 बिलियन में कितने ट्रिलियन, ट्रिलियन में कितने बिलियन होते हैं, बहुत सारे बिलियन होते हैं. 1000 बिलियन इज 1 ट्रिलियन. तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सॉल्यूशन सेलिंग की.
तो वर्ल्ड वाइड में ये कहीं ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है इस तरीके की चीजें, तभी हम लोगों को ये अलग से क्लासेस लेनी पड़ती। और इस वजह से आप देखिए, ये अगर आप देखें, सेल्स इफेक्टिवनेस इज नॉट टॉट इन स्कूल्स, बट हमें क्या चाहिए, हमें अच्छा सेल्स प्रोसेस को सीखना जरूरी है। वो इससे वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई what they want, and we are able to identify the behavior that is required. So that's why let's move further. और ये मैंने अपने आप पे भी अपनाया। शुरू में मुझे भी स्ट्रगल था सेल्स में, लेकिन जब मैंने समझने लगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझने लगा, तो उससे ये चीज़ें बहुत इजी होने लग गई। एंड मोर ओवर आई वॉज एबल टू फॉलो माई प्रोसेस, माई पैशन एंड माई पर्पस। तो ये हम सबको भी करना। ये दो चीजें, अब हम परफॉर्मेंस इश्यूज पे आते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा पहला जो जो स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस इशू। अब क्या है परफॉर्मेंस इश्यूज, क्या हो सकते हैं, माइंडसेट का हो सकता है या स्किल सेट का हो सकता है। तो ये दो तरीके की परफॉर्मेंस इश्यूज होती हैं, एक हमारी खुद की माइंड की, खुद की एटीट्यूड की। हु इज योर बिगेस्ट एनिमी? आपके पड़ोसी, आपके ऊपर या नीचे? देखिए नीचे कहीं है आपके बिगेस्ट एनिमी है, दिख रहा है कोई? द बिगेस्ट एनिमी इज विद इन आवर माइंड, isn't it? So that's why we need to see what are the challenges which are there in our mind. और वो क्या हो सकते हैं, अभी इसको कहा भी गया, देखो ये दूसरा क्वेश्चन भी है, पूछ रहे हैं विच इज द बिगेस्ट केज। वो भी हमारा माइंडसेट ही है, आई कांट इज द बिगेस्ट केज। बहुत बार सेल्स के दौरान भी आता है कि मेरे से नहीं होगा, या मैं उसको कैसे अपना ऑफर करूं सॉल्यूशन, या बाद में करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिकॉज सेल्फ इम्पोज बिहेवियर्स जो है ना, वो हमें बड़े ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं। सेल्फ इम्पोज बिहेवियर, तो दो बैरियर्स में हम कह सकते हैं, वो बिहेवियर नहीं है, वो बैरियर्स हैं, वो लिमिटेशंस हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस हम अपने आप पे इम्पोज करने लगते हैं, दैट बिकम्स अ बिग बॉटल नेक। क्या है ऐसे सेल्फ इम्पोज बैरियर्स? एनीबडी? What can be the self-imposed barriers? Yes, it is can't do, I can't do, I won't do, I am doing okay। अभी तो सब ठीक है, ये तो रिसेशन है, वार है यूक्रेन और उसमें रशिया में, इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से सेल्स नहीं हो रही है। तो हम लोग बहुत सारे एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं। ऐसा भी कोई एक्सक्यूज कहता है कि भाई वहाँ जो है ब्रिटेन में किसी को जो है वो खांसी आ गई, किसी को छींक आ गई, तो इंडिया में सेल्स कम हो गई, ऐसा थोड़ी होता। लेकिन एक्सक्यूजेस के सिर और पैर नहीं होते, और वो हम जस्टिफाई करने लगते हैं। आई एम डूइंग ओके, मैं तो ठीक कर रहा हूँ, वो कस्टमर ही मुझे नहीं दे रहा ऑर्डर, अदर्स डोंट, हाउ कैन आई। हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये सारे जो बिहेवियर जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ना, ये सेल्स से रिलेटेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको हमें इम्प्रूव करना है। फोकस, दैट्स व्हाई वी सेट स्मार्ट गोल्स, क्लैरिटी इन व्हाट वी वांट, एंड फोकसिंग ऑन आवर जॉब, फोकसिंग ऑन आवर हाई पे ऑफ एक्टिविटीज। सेल्स वाले का हाई पे ऑफ एक्टिविटीज क्या है? पर्सनल सेलिंग जो करता है। क्या सबसे जरूरी एक्टिविटी है? मीटिंग, इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट्स। तो आप अपना टाइम ऑडिट देख कर ही आप देखिए आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं। आर यू इंटरेक्टिंग सफिशिएंटली, और इज देयर अ लैग, या कहीं ना कहीं कमी है, या कम कर रहे हैं, या रूटीन कामों में फंसे हैं कि इंटरेक्शन के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो फोकस डाइल्यूट हो रहा है, इंटरप्शंस बहुत सारी हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। एंथुजियाज्म, हमारे अंदर में वो एंथुजियाज्म नहीं है अपने लिए। हमें चाहिए तो सब कुछ, लेकिन उसके लिए एक्शन के लिए एंथुजियाज्म नहीं है, प्लानिंग के लिए एंथुजियाज्म नहीं है।
एनर्जी नहीं है, तो वो कहाँ से आएगी? एंथुजियाज्म हमें अपने पर्पस से लानी पड़ेगी, अपने अंदर से लानी पड़ेगी। वाई वी वॉन्ट what we want, why we want that. That will create an enthusiasm. Listening. हम सिर्फ बोलते हैं, sales is not just about talking. Sales is about most of the times listening. Listening is very very important. हम आगे आने वाले सेशंस में listening पे भी एक्सरसाइज करेंगे, उसको और इन चीजों पे और डीपली जाएंगे। डेवलपिंग ऑन रिलेशनशिप्स, उसके लिए क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिल्डिंग। what time you are giving for that, ensure we achieve more of our potential। पिछले साल बहुत अच्छी सेल है, हम खुश हो गए, बहुत अच्छा है, खुश होना चाहिए, खुशी से ही काम करना है, लेकिन उससे आगे हमारा पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। so what are we doing for this year to realize our potential to the next level? Working together, single person can't achieve anything, we have to improve our team building, team skills, building our team, ऑर्गेनाइजिंग, हमारी प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं। स्ट्रेस हो जाता है, कोई नेगोशिएशन करने लगता है, उससे स्ट्रेस हो जाता है, कंफ्लिक्ट आने लगता है माइंड में, स्ट्रेस में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं कि इससे कैसे होगा, कैसे नेगोशिएट करें, और सेल्स फिर नहीं होती या कम प्राइस में हो जाती है। स्किल सेट का भी हो सकता है चैलेंज कि सेल्स का प्रोसेस नहीं पता, क्या स्टेप्स हैं वो नहीं पता। तो आपके लिए now you need to identify the top 3 factors out of this which is the most challenging for you, and if you improve your sales will improve, your team sales will improve। तो ऐसे इनमें से 3 ऐसे फैक्टर निकालिए जिसमें आपको इम्प्रूव करना है, जिसमें आपको और बेहतर बनना है, जिससे आपकी सेल्स और बेहतर हो जाए और बढ़िया हो जाए। तो ये एक बार हम लोग इंटरनल फैक्टर्स ले रहे हैं अभी। आई नो आउटसाइड फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरनल फैक्टर्स पे हमें ज्यादा कंट्रोल होती है, इजंट इट? आपकी कंट्रोल तो आपके ऊपर ही होगी ज्यादा, या आपके पड़ोसी पे होगी ज्यादा। तो ज्यादा यंत्र है जैसे पड़ोसी पे है तो मुझे भी दे दो, मैं भी करने लग जाऊँ। चलो अभी तो हम अपने अपने लिए पहले बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा हम इंटरेक्शन करते हैं, बहुत टाइम से मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम यू आल्सो, फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो एक एक चीज बताइए कि आपके क्या इसमें चैलेंज आए, विच इज द टॉप मोस्ट चैलेंज आउट ऑफ दिस विच यू वांट टू इम्प्रूव, एंड इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी आल्सो। आप ऑलरेडी अच्छे हैं लेकिन और अच्छा होना चाहिए। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो नीलेश जी आपसे शुरू करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पर्सन के पास जाएंगे। यस नीलेश जी। वही one of the challenges we faced was number of client interactions was low. So उसकी वजह से we were not achieving our sales target. So that we for the past 1.5 months we are working on that. We are focusing on new client interactions every week, or even existing customers के साथ we are interacting to understand what is the problem they are facing from our side in terms of delivery time, delivery issues or quality issues. So now the focus is more on client interaction and achieving sales through that. तो ये आपने अपना टाइम पहले जो कम जा रहा था या फोकस कम था उस पे, उसको आपने कैसे शिफ्ट किया? व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू चेंज which help you in having more focus on this? Improve time management, or
वीकली 2-3 दिन हमें ऐसे रख दिए हैं, लाइक ट्यूसडे एंड थर्सडेज एंड फ्राइडेज, वेयर फॉर 1 hour वी आर ओनली डिवोटिंग टाइम टू क्लाइंट इंटरेक्शन. वंडरफुल वंडरफुल. तो इसका मतलब आपने टाइम को जो है और फोकस तरीके से इन चीजों पे आपने शुरू कर दिया. राइट. सो ग्रेट टू नो अबाउट इट. अब ये आपने अपना अच्छा शेयर किया. अभी इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट आता है वो भी आप नोट कर लीजिए. और आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी आल्सो राइट डाउन सम एक्शंस which you want to take for your challenges which you are facing. जो आप एक्शंस लेना चाहेंगे उसके लिए तो वो भी लिख दीजिए. व्हाट एक्शंस यू वांट टू टेक फॉर दोस चैलेंजेस. तो लेट्स डिस्कस फ्रॉम केपी सिंह जी. आप बताइए. Yes, so actually, now actually earlier few months back, we had a issue with training to staff, because actually we are a product company. So of course, actually the knowledge transfer of all of the product was a little bit difficult. So what we have done, we have now started developing videos, training videos. So now it's okay, but the same time again, because the sales team always become reluctant to learn, right, to from the videos. So for that actually we have made a schedule for the personal interaction, because being a human being, actually people don't want to learn from the videos always, but they also need the direction, actually, the human interaction. So that's what we have started. So now gradually we are improving. But as a business automation person, actually, I have seen in many other people also, because the two or three things mainly. One is people don't follow their own strategy, as you mentioned in the beginning. So goal, if goal means not only goals, but that goal with the roadmap, right, and plus the daily execution. So that's important. But what I have seen in I mean, with 80 people out of 100, 80% people do not follow consistency. So that's the main issue, and that may lie any of the category what is being displayed in the slide, right? That may be a behavioral issue, that may be a something, that may be because of anything, but it happens most of the people. Because when uh, we teach someone, when we help to design a goal and all roadmap, you can give a lot of tools to people, but the one problem remain common, that they will get enthusiasm that time, and that enthusiasm will remain only for a month, right, or two. Then people started, I know, coming down from that their road or whatever they have developed. So एब्सोल्युटली. तो that's a barrier. एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट. तो यही पॉइंट को हम कैसे टैकल करें, ये जो ये वाली स्लाइड है ना वो इसी के लिए बनाई है कि वी नीड टू फोकस ऑन आवर ओन एटीट्यूड, बिकॉज Right. एटीट्यूड प्रीसीड्स एवरीथिंग. अगर हमें कंसिस्टेंटली जो है अपने रिजल्ट्स को अचीव करना है और वी नीड टू इम्प्रूव आवर कंसिस्टेंसी, देन वी नीड टू बी क्लियर विथ आवर पर्पस. वी नीड टू बी क्लियर विथ आवर ओन इंटरनल गोल्स, आवर ओन passion, because internal motivation we need to develop. External motivation is good, but it has got its own limitations. Especially for the top management, it is not recommended to go in for just external motivations, because उसकी अपनी limitations होती हैं और वो permanently जो है motivate नहीं कर पाता है लोग, क्योंकि वो उस समय एंथुसियास्टिक होते हैं उस समय या उस हफ्ते, लेकिन बाद में वो जो है कम होने लगता है, क्योंकि अंदर से मोटिवेशन को जगाना जरूरी है. और वो आपको अपनी गोल्स के लिए क्लैरिटी होनी जरूरी है, या अपनी जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसके लिए काम करने की जरूरत है. तो अभी लेट्स डिस्कस नाउ विद अश्विनी जी
कि वहां पे क्या चैलेंज है, let's discuss with him or with one of their team. Yes, इसमें मेरे को थोड़ा सा एक ये वाला पॉइंट समझना था आपसे, वर्किंग टुगेदर, स्ट्रेंथ इन नंबर्स। yes. So great to see you and your team. Really happy. And strength in numbers, working together is about interpersonal relations, developing good team, and selecting right people, which leads to multiplication of the results. So that is working together. So how is it in our organization? Is there a gap? Then what we need to do to fill that gap? So interpersonal relations का इस पे फोकस आता है और recruiting right people also. Because जो मेरी अगली मास्टर क्लास है 3 तारीख को, आप लोग सब लोग नोट कर लो, and all of you are invited for that. That's a topic which is a new topic for all of you. It is about connections breakthrough. How can we be surrounded by right people? Power of proximity. How can we develop right relations? So that would be the next topic. Master class हम आज 2 हफ्ते में अब एक लेंगे आप सबके लिए, नए टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, so that all of you are benefited by that. और रेगुलर कोचिंग तो चल ही रही है. So yes सिंह साहब बताइए. Actually, only I wanted to answer Ashwini's question in another way, if Yes. I'll be allowed. Please, yes. Yeah, so working together, if we talk about the within the office, right? So in that case, we can define in other way also, or we can understand that if whatever goal we are defining, right, and we are developing the roadmap to achieve that goal. So actually, for example, you have 50 people in your team, but only 10 are within the goal and 40 are out of the goal, correct? So aligning your team to achieve that goal through that roadmap, whatever you have aligned and the way you are walking, right? So that's very important. What I have observed in others' business or as per my experience. So working together means you can collect more people, you can align more people to achieve your goal together with you. So I think that can help you a lot. So that's what I wanted to, I know. Thank you. Very good sharing and input. It is a great point that we need to understand. The goal, the organization goal need to be further divided into each person's goal. और वो जो each person goal, when they come together, then you start achieving the numbers, strength in numbers. So that is the right point stated by Singh Saab. So each one of us might have our own challenges, our own attitudinal challenges, and we have got the entire program for that, which is effective personal productivity. That's an entire program focusing on attitude and building the right culture. And I will also recommend one thing, that identify one challenge every month, start working towards that. One internal challenge, one habit related challenge. Habit related challenge like say indiscipline, procrastination, losing the focus. So all these things like we are seeing on this slide also. Time management, improper time management, वो सब organizing में ही आ जाता है. तो इसीलिए ये है. So now we'll move forward. Any questions up till this point? सर मैं अपनी टीम से बोलूंगा, वो अपना एक मेजर चैलेंज बताएंगे. हाँ प्लीज. कौन इसमें कौन अजय आप बताओ. सर मेरे चैलेंज ये आता है कि आई काउंट डू इट, मतलब ये काम नहीं कर सकते हैं, ये चीज है. ओके, वेरी गुड पॉइंट. सो आई कांट, यू आर सेइंग कि अंदर में विश्वास नहीं होता या कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, या माइंड में
जो है वो एक तरीके से इंफीरियरिटी या नेगेटिव मोटिवेशन होता है। So for that we need to identify our own strengths. We need to work on our attitudes. We need to replace that negative attitude with positive attitude. So from I can't to I can. So which is like we need to go beyond the limiting thoughts. तो उसके लिए क्या करना है, आपको पॉजिटिव थॉट्स को लेने और उसको 31 महीने तक उसको अप्लाई करते रहना। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई योर गोल्स, और गोल्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो वो अंदर से आने लगेगा, हाँ मुझे ये करना है। ये एक दूसरा तरीका है। पर्पस या मिशन, जैसे इस स्लाइड में भी लिखा है कि आपका पर्पस क्या है, आपके सपने क्या है। पर्पस कई बार बहुत एक आइडियोलॉजिकल एंगल से जाते हैं, तो आप सपनों पे जाएंगे, ड्रीम्स। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? इफ यू आर क्लियर विथ योर वांट्स, देन व्हाई एंड हाउ आर क्लियर। तो आप वांट्स पे जाइए, आप क्या चाहते हैं, तो वो फिर ये अपने आप को आप मोटिवेट कर पाओगे। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन, व्हाट इज योर प्राइम सेलिंग मोटिव। ये आपका प्राइम सेलिंग मोटिव क्या है। हमने ये सुना है प्राइम बाइंग मोटिव, कि कस्टमर का बाइंग मोटिव क्या है, लेकिन हमें अपना सेलिंग मोटिव भी क्लियर करना है। तो ये आपको मैं अभी एक एक्शन प्लान भी दूंगा, वो आपको और फर्दर हेल्प करेगा इस पॉइंट पे। मैं भी आता हूँ उस पर। और so should we move ahead if we don't have question? So अभी Rahul ji, I have a question. हाँ बोलिए नीलेश जी। Rahul ji, sometimes what happens, for example, for motivating sales team, यस internal motivation, so I think it comes if we give them financial incentives or something like that. तो एक वो मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि when we give them financial incentives to increase sales, तो वो कई बार ऐसी जगह सेल्स हो जाता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल कस्टमर डजंट हैव अ गुड क्रेडिट रेटिंग, या पैसा अटक जाता है, फाइनेंशियल इश्यूज बाद में आ जाते हैं, या कस्टमर फॉर एग्जांपल उसको अगर 20 lakhs का क्रेडिट लिमिट हमें देना है, बट बिकॉज उनको अपने टारगेट मीट करने या वो करने, तो वो 50 lakhs तक का भी उधार दे के आ जाते हैं। वो फिर एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो हाउ टू कीप दैट आल्सो इन चेक, एंड इसके साथ साथ मतलब विद मतलब increasing sales as well as improving your credit cash flows, or improving your credit cycle with customers. Very good point. So that's why we are saying here that we need to be clear with our overall policies of the organization. So as a business leader, it's our responsibility कि हम अपने स्टाफ को, अपनी टीम को पूरी पिक्चर दिखाएं। आधी पिक्चर देखते हैं तो वैसे ही मजा नहीं आता है ना। तो पूरी पिक्चर दिखाने का मतलब है उसको हर जो रेलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको बताना है कि सेल्स विदाउट राइट क्रेडिट पीरियड इज नॉट अ गुड सेल्स, इनफैक्ट इट कैन बैकफायर। तो वो हमें उसके लिए टाइम टू टाइम वी नीड टू शेड्यूल द training or communication system where we help in all the areas and identify the right kind of policies. तो वो उनको आपको बताना ही होगा कि कम्युनिकेट करते रहना होगा रेगुलर। प्लस जो है उनको उनकी क्या अथॉरिटी है और इसके बियॉन्ड उनसे उनको डिस्कस करना है आपसे। तो वो एक चार्ट आप उनको क्लैरिटी दे दीजिए माइंड में कि भैया ठीक है, इस क्रेडिट लेवल तक तो आप सेंड कर सकते हो, उसके बियॉन्ड यू नीड टू डिस्कस विद योर सुपीरियर और स्टफ लाइक दैट। प्लस उस चीज का कल्चर हमें क्रिएट करना है, ये कल्चर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना, बिकॉज हमने एक चीज पहले भी मैंने बताई थी कि सिर्फ सेल्स अचीव करना तो आसान होता है, लेकिन अगर हम इसको देखें, मैं वापस इस पे आता हूँ कि रिजल्ट्स ऑफ ROI, and ROI and result is just not about sales, it's about our profitability also. So ultimately we need to see कि is that sales value additive, वो value add कर रहा है, maybe in terms of new client or maybe in terms of higher margin, जो भी आपको value add चाहिए that you have to define, so accordingly.
You need to guide your sales team, because हो सकता है कुछ नए प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, उसमें हो सकता है आपकी मार्जिन कम हो, लेकिन कुछ पुराने प्रोडक्ट में ज्यादा हो, तो वो आपको एक पर्सनलाइज्ड पॉलिसी या पर्सनलाइज्ड अप्रोच रखनी होगी। ब्लैंकेट अप्रोच नहीं रख सकते हैं कि हर चीज के लिए इतना ही पीरियड होगा या इतना ही जो है वो प्राइस हमें इतनी मार्जिन रखनी है। It all depends on the kind of product policy, product launch or new product, mature product, new customer, new market, mature market. So personalized approach रखनी है, because now things are become specialized. Industries have become specialized. There are many suppliers. So we need to outwit them by having that personalized approach. Am I making sense, Nilesh ji? Yeah, right. Okay, so let's move ahead. तो इसी के ऊपर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ। जैसे उन्होंने बताया, पूछा भी था कि इंटरनल मोटिवेशन को कैसे जो है उसको कैसे बढ़ाएं। In fact, we our needs and sufficiency our needs and wants are sufficient to motivate us. Can we learn from dog regarding this? जी हाँ, हम एक डॉग से भी सीख सकते हैं, हम एक कुत्ते से भी सीख सकते हैं। एंड यस, डॉग इज नॉट कि हम जो पिक्चरों में देखते हैं कहते हैं ये गाली के समान, उसको मत सोचे आप। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम डॉग। लेट्स सी दिस वीडियो। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इसी पे, जो आपको हो सकता है इस चीज को आप उसको रियलाइज करेंगे और आप अपने पॉइंट्स, आप अपनी जो है ना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए कि ये वीडियो से आपने क्या एनालाइज किया और कैसे आप इसको अप्लाई करोगे सेल्स में। तो ये एक तो वीडियो हिंदी में नहीं है, जानबूझ के मैंने हिंदी वीडियो नहीं लिया, इंग्लिश वीडियो नहीं लिया, ये दूसरे लैंग्वेज में है। आपको उसके इमोशंस को समझने हैं। सेल्स इज ऑल अबाउट इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग योर एंथुसियाज्म टू बायर। मोर ओवर, ये जो वीडियो का मैं बैकग्राउंड बताता है कि एक पिक्चर से ली गई है और इसमें एक डॉग भी है और एक बंदा है। चार्ली इज द नेम ऑफ द डॉग एंड ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड एन इंडिविजुअल। दैट इंडिविजुअल वाज हेटेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी जो है वो उसको हेट करती थी। तो लेट अस सी दैट हाउ दैट डॉग हैज ट्रांसफॉर्म्ड दैट इंडिविजुअल। तो एक बार देखते हैं what kind of sales skills that dog has used. Let me just open that video with the sound. Yes. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು. ಗಾಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ತುಸು ಮೆಲ್ಲಗೆ, ಪ್ರಾಣ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸೀದಾ, ಹಾಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾರಿದೆ ಜಿಗಿದು ಹೊಸ ಹಾದಿಗೆ. ಇರು 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 ಹೀಗೆ ನೀ ಎಲ್ಲೂನು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ, ಸುತ್ತ ನಗಿಸುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತಾ ಹೀಗೆನೆ ಬದುಕಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುವೊಂದು ನಾ ಕಂಡಿರುವಾಗ ಎದ್ದು ಎದುರಿದ್ದು ಹಗ್ ಮಾಡು ಸುಮ್ಮನೆ. ನಾಯಿ ತಗೊಂಡೆ ಮಗ, ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಮತ್ತೆ ಆಗಿರುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ, ಇದರರ್ಥ ಋಣವಿನ್ನು ಬಾಕಿ. ಇನ್ನುಂದೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳುವೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗಿನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ. ಚಾಲಿ ಉಸಿರಿದವರು ಜನನ ನೀನೇ ರೂವಾರಿಯೋ, ಚಾಲಿ ಬರಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಗಮನ. ಚಾಲಿ ಚಾಲಿ. ಅಂಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಆದಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಅಮ್ಮ ಬಂದೆ.
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧರ್ಮ ಸರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದಾರಲ್ವಾ? Their team member is surprised ki how this person has changed. Earlier that person didn't spoke to the team members. ಭಾವನೆಗಳು ಭಾಷೆಯ ಮೀರಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದೆ. ಓ ಚಾರ್ಲಿ, ಏಯ್, ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಹಾರಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿದೆ ತಗೋ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹೇಳುವೆ. ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗಿನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಚಾಲಿ ಉಸಿರಿದು ಮರು ಜನನ ನೀನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Ready? Smile. Yeah, so what is shown in this video? What is your learning? Anybody? How that dog, how that Charlie, the dog has been able to transform the person. कोई बताएंगे? यस अश्विनी जी. सर मेरे को इसमें ज्यादा कुछ मैं ढूंढ तो बहुत कुछ रहा था, मिला कुछ नहीं सर. आई एम नॉट एबल टू. गुड गुड, अच्छी बात है. अभी सिंह साहब से समझते हैं, बताइए. एक्चुअली I think एक तो कोई happiness, what I understood, whatever you are doing, do with happiness, and small things can make a huge difference. Basically, what I understood from this. Absolutely. So it is like the unconditional. Yeah, love. unconditional. The unconditional love by the pet. It has been able to transform. So can you unconditionally love your client? Can you unconditionally work to know about the pain points of the client? Can you identify the right people for that? Not only you, but have the process to identify the right people in your organization, to select the best in your organization within the framework, like Apple. Why Apple products are supposed to be very good products, and we know about the performance because of their people. They have been able to have the right people. They know about their needs of the users. तो वही चीजें हमें अपने प्रोसेस में करना पड़े, अपने एटीट्यूड में करना पड़े, and we all have that kind of capability. So welcome Mr. Kela, आप भी साथ में. Thank you. Yes. So great. So ये एक अलग तरीके की वीडियो थी, लेकिन इससे हम लोग सीख सकते हैं बहुत कुछ. और कई बार क्या होता है कि डिफरेंट चीज से हम लोग ज्यादा सीखते हैं. तो ये एक छोटे जो एक्शंस बताए, डॉग ने उसको केयर किया, वो छोटे एक्शंस ही हमें चेंज करना होता है अपने कस्टमर के लिए. Small action can lead to huge change in the results. तो वही चीज इसमें भी दिखाई गई. So that's why we have to have right kind of self-esteem. क्योंकि अभी हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइंडसेट की बात कर रहे थे. माइंडसेट पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. अब मैं लास्ट के 5-10 मिनट स्किल सेट पे लूंगा. अब स्किल सेट में ये 5 जो स्टेप्स होते हैं हमारे, have we defined these steps for our sales team? Do we have the script for all these steps? These are the basic steps in any sales process.
सेल्स पर्सनल सेलिंग के बेसिक स्टेप्स हैं. सबसे पहला, इट इज अबाउट अप्रोचिंग प्रोस्पेक्ट फॉर मीटिंग. So what kind of approaches we are using, how we are fixing the meetings? Is it on call, or is it person, or is it in exhibition, or is it somewhere else? So we need to have the right approaches. So all these approaches can be used depending on the situation. And if it is a high value sale, then phone can't be utilized for selling purpose, especially for a new client, where we need to understand the needs of the client. We need to fix up the meetings with them. So phone is just a mechanism for fixing the meeting. कई बार हम फोन पे ही बहुत सारा कुछ उनसे डिस्कस करने लगते हैं, स्पेशली फॉर अ न्यू क्लाइंट. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन पर्सन और ऑन जूम, गिव सम टाइम, अदरवाइज इट मे बैकफायर. तो टाइम उनका लेना जरूरी होता है. 20 से 30 मिनट भी अगर आप लेते हैं तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, यू विल बी एबल टू इंटरव्यू द प्रोस्पेक्ट. सो इंटरव्यू इज टू identify what they want. It's written interview, it's not written you are pitching the program, you are pitching the product, you are pitching the service. It's not pitching, it's interview. ये फर्क है लैंग्वेज में. क्यों फर्क है? इंटरव्यू इज टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द buyers. What kind of need that buyer is having, what kind of need that prospect is having. What is the prime buying motive? Your product is just not a product, it is a solution, it is an experience that you are providing. So if somebody goes to Disneyland, why people go to Disney? For happiness, for entertainment, for the solution. That is entertainment there. It's not just going for the sake of going. So that entertainment factor is there. Same way, why people are coming to you? Why people use telephone? It's just for conversation? Yeah, conversation is one thing, but it is much more than that. For somebody, it can be a piece of art in terms of photography. For somebody, it can be entertainment. For somebody, it can be battery, storage. So you need to identify. So interviewing the prospect and then handling the stalls and objections. These stalls and objections will be there while, if you discuss with any customer, there would be some questions, some stalls. We should be happy that people are asking you. Sometimes we hesitate, or sometimes we have negative mindset that why the prospect is asking me again and again. No, it's a good situation. Because if he is interested, then only he will ask you. And we need to have preparation for stalls and objections. Somebody says that price is very high. Then what is your preparation? How will you tackle that objection? Would you succumb to their pressure? कई बार हम प्रेशर में आके प्राइस कम करते हैं. नहीं, पर आपने बड़े होमवर्क करके किया कि प्राइस तो ज्यादा नहीं है, जो आपने प्राइस रखा है वो सही रखा है, फिर आप कम क्यों करोगे? So you need to identify the right kind of conversation, what value you are providing. So if the investment by buyer is say 1 lakh rupee and you are providing 10 lakh rupee of value, then it is not expensive for the buyer. So that value is important. And value, you have to show the value of your product or of your solution. So do you have the right kind of conversation script for each of the objections? So think about it. If it is required, then prepare that. And then closing the sales is the responsibility of salesperson. Closing is like asking. You need to ask the questions. Ask to buy. Ask the buyer that when is he going to buy the product, when he is going to subscribe it. If he is not subscribing, then there can be huge loss.
So when is he going to take that action? Month end is the offer end. Month ends, offer ends. So are you going to buy? महीना खत्म, offer खत्म. So you need to create that sense of urgency. Limited time period है. अभी कोई शादी होती है, हम जल्दी से वेन्यू बुक करते हैं कि नहीं? तो पता लगा वो वेन्यू ही नहीं रहा, होटल ही नहीं रहा, तो पहले ही हम बुकिंग करने लगते हैं. वैसे ही यही अर्जेंसी हमें माइंड, बायर के माइंड में क्रिएट करनी है थ्रू आवर क्वेश्चंस. Right kind of questioning technique, asking the right questions. So that will help us in closing. And each of these are the detailed steps that we need to prepare for it, which we actually cover in our long-term programs. But you can always share the script with me. I can give my feedback. And then reference and resales. At the end of it, we need to ask questions. In terms of referral, such kind of buyer is a good prospect for us, so please refer us. So we need to have this in our process, referral and resales. So you are a consultant to that client. You act as a helper, teacher, speaker, consultant, problem solver. You are a problem solver. How can that customer can achieve more business by following your advice? That kind of trust you have to create, and you have to provide that kind of solution, so that customer will come back to you. Now, at the end, I will give you this very important plan of action, which I told you in the beginning that I will give you a plan of action. Each one of you should have this plan of action for you. It will give you motivation also. That what kind of income you want for yourself. Each one of you, please note down one thing, that new calendar year is coming up from January 2023. तो उस जनवरी टू दिसंबर 2023 के लिए आपको अपनी क्या इनकम चाहिए? मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, आपकी अपनी पर्सनल इनकम. So can you note down your income, the level of income which you want? Because in the beginning I said sales is the biggest opportunity. Why it's the biggest opportunity? Because you can have unlimited income. You earn through incentives also. You earn through profit sharing, revenue sharing, besides your fixed income. So can you have the income goal for yourself? Have you written down? And to achieve that income, what sales you want? Achieve your personal income. For example, if somebody has written, my personal income should be 1 crore rupees. For achieving that 1 crore, I want sales of 10 crores. Or 50 crores, whatever the situation is, as per your organization. Have you done that? Then, how many prospects do you need? So suppose for achieving that sales, suppose you have to achieve 10 crore of sales. For 10 crore of sales, you need say 10 clients. And for conversion ratio is 10%. It means you need 100 prospects. 100 prospects you will be needing, so that you have 10 clients. And for that 100 prospects, how many contacts? More contacts. Say you need 5 times more contacts. 500 contacts may 100 prospects, and then contacts can be also in terms of approach. So how many times you need to call? So you need to have a calling target. So 100 prospects को हर हफ्ते आपको 2 मीटिंग करनी होगी, तो आपके 100
डे 100 वीक्स में मतलब 52 वीक्स में 100 आके हो जाए. Isn't it? Is that clear? Contacts in terms of meetings we are talking about. और जो दूसरा कॉन्टैक्ट था वो था प्रोस्पेक्ट के ऊपर जो कॉन्टैक्ट होता है. तो अभी हम यहाँ पे मीटिंग की बात करें. सो 2 मीटिंग करेंगे रोज. अगर रोज करेंगे तो आपके 100 प्रोस्पेक्ट्स जो है वो बहुत जल्दी आप उसको कर सकते हो. और साल का लेते हो तो हर हफ्ते 2 मीटिंग करनी. तो मैं अभी एक एग्जांपल अपने लिए ले रहा हूँ, जनरल एग्जांपल है, फिर आप अपने आप से इसको करना. सो 100 जो है आपको 100 मीटिंग्स करनी है और उसमें 100 मीटिंग्स आपने फिक्स करी है. एंड प्रॉब्ली 100 मीटिंग्स फिक्स करने से 100 मीटिंग होंगी नहीं, कम होती है, हमेशा 70-80% ही होती है. तो आप इसलिए थोड़ी और ज्यादा कॉन्टैक्ट्स रखिए. अगर आपको 100 कन्वर्जन करनी है, 100 मीटिंग्स के लिए 100 मीटिंग करते हैं, 10 कन्वर्जन होती है, तो 150 कॉन्टैक्ट्स करनी पड़ेगी टू बी ऑन अ सेफर साइड. 50% एक्स्ट्रा मीटिंग फिक्स करिए. तो कुछ कैंसिल होती है तो कोई बात नहीं. जैसे भी आपने देखा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में इंग्लैंड शुरू से ही बहुत तेज खेलने लग गई थी और उन्होंने तो 10 विकेट से धो दिया इंडिया को. तो पहले से ही वो सेफ साइड में तेज खेलने लग गई. तो ऐसे ही हमें तेज खेलना है. 2 मीटिंग की जगह 3 मीटिंग करोगे तो अपने आप अपना टारगेट पहले कर लेंगे. तो यहाँ फेस टू फेस प्रेजेंटेशन हो गई. यहाँ हमने क्लोज ऑलरेडी कर दिया कि उसमें से 10% ही हम क्लोजर मान रहे हैं. 100 मीटिंग में 10 क्लोज हो. तो हाउ मेनी क्लोजेस? 10. तो उतना क्लोज हो जाता है तो हमारी 10 करोड़ की सेल हो गई. तो ब्रेक डाउन द गोल इन माइन्यूट डिटेल. इतना डिटेल में जाओ कि आपको मजा आने लग जाए. मैंने ये किया है. पर कॉल की वैल्यू होती है, हर कॉल की एक वैल्यू है, हर मीटिंग की एक वैल्यू है. आपने एक कॉल करी, उस कॉल की वैल्यू 1000 रुपये हो सकती है, एक मीटिंग की वैल्यू 10,000 रुपये हो सकती. तो आपको अपनी डिटेलिंग में जाना एंड हैव ए डेडलाइन फॉर ईच स्टेप. डेडलाइन भी घबराने लग जाए आपसे कि हाँ ये तो पहले ही कर लेते हैं, इन्हें डेडलाइन की जरूरत ही नहीं. वो कहते हैं ना, हमें थप्पड़ से डर नहीं लगता, हम डेडलाइन मीट नहीं करते उससे डर लगता. तो हमें डेडलाइन मीट करनी है. तो ये आपको अपने लिए अफर्मेशन देना है कि आई लाइक माई सेल्फ, आई मीट डेडलाइंस, आई डू नेसेसरी मीटिंग्स एवरी डे, I am good in calling, I am good in conversing with people, I understand people, I like listening to the people, I like listening others. लिसन करेंगे, सुनेंगे तभी तो समझेंगे. तो ये हमारी अफर्मेशंस होनी चाहिए. आई नो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट एक टाइम लिमिट है हम सबकी. और ऑनलाइन ज्यादा हम बोलेंगे तो फिर आंखें भी दर्द करने लगती हैं सुनने वालों की. मेरे को तो नहीं करेगी, मुझे तो आदत है. एंड ट्रैकिंग सिस्टम, तो ये ट्रैकिंग बहुत जरूरी होती है. तो मैंने डेली ट्रैकिंग शीट कई लोगों को यहाँ पे दी हुई है जो ऑलरेडी प्रोग्राम मेरा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम. तो ये चीजें भी ट्रैकिंग कर लिया. Nilesh ji, what have you understood from this slide? Which one do you want to apply more out of this action, plan of action? The same thing that I said before कि number of client interactions बढ़ाना है and conversions, client interactions as well as client conversions. तो इसका आप एक मैथ्स बना के मुझे शेयर करिए कि इस लेवल ऑफ सेल्स मुझे 50% ग्रो करना है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मीटिंग्स कितनी करनी है, हर महीने मुझे कितनी मीटिंग करनी है, उसके लिए कितने प्रोस्पेक्ट होने चाहिए, और उसके लिए एक रेफरल का गोल भी होना जरूरी है. सबके लिए रेफरल का गोल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें नए सेल्स बढ़ानी है, तो बिना रेफरल के सेल्स इजीली नहीं बढ़ेगी. एंड इनकम का गोल किस लिए इंपॉर्टेंट है? एनीबडी?
why we need to have our income very clear in our mind. Yes, अश्विनी जी की टीम से कोई बोलेंगे कि इनकम का ये गोल क्यों इम्पोर्टेंट है, ये अपनी पर्सनल इनकम का गोल क्यों रखना चाहिए, ये कैसे हेल्प करेगा हमें? मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन के रूप में। तो आप अपना इनकम लेवल लिखेंगे कि आपको कितना ग्रो करना है नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल सर। या लिख चुके हो? नहीं लिखा तो अभी लिख लीजिए, एक बार लिख डालिए, इम्पॉसिबल भी लगता है तो भी लिख दीजिए, होगा वो अचीव, बिकॉज इन सेल्स देयर इज नो लिमिट। क्यों अश्विनी जी? आप कंपनी, आपकी कंपनी तो ऐसे इंसेंटिव देते हैं लोगों को, आप बताइए थोड़ा। सर यही टीम बताएगी सर, मैं क्या बताऊं, कौन बताएगा हमारे यहाँ पे क्या इंसेंटिव है इसे? आप बताइए। फुल सैलरी मिलती है आप अपने गोल को अगर अचीव करते हो। टारगेट जो आपको मिला हुआ है अगर आप अचीव करते हो फुल सैलरी मिलती है। इंसेंटिव अमाउंट वाइज बताइए, स्पेसिफिकली बताइए। अमाउंट वाइज ये है कि सर जैसे अगर जैसे जिसकी सैलरी 30 से कम है उसको हम डबल सैलरी देते हैं अगर वो 75 लाख का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो। और जिनकी 30 प्लस सैलरी है उनकी अगर ये टारगेट 1 करोड़ अचीव हो जाती है या उससे ऊपर होती है तो उनको भी डबल सैलरी हम देते हैं। वो इंसेंटिव प्रोसेस है। मतलब काफी स्कोप है कि हमारी इनकम बढ़ सकती है, isn't it? अश्वनी जी? सर हमारी टीम कर भी रही है, अचीव भी कर रही है। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे तो जो जूनियर्स हैं उनके जो बिलो 30,000 है उनके लिए ऐसा स्लैब हमने बनाया है। इनफैक्ट ये टीम ने ही बनाया है कि 75 लैक्स की अगर वो सेल अचीव करते हैं तो 10,000, और 1 करोड़ करेंगे तो डबल सेल, और 30 प्लस है जो उनके साथ 1 CR पे 10,000 और 1.25 CR पे डबल सेल। तो मतलब देखो ह्यूज स्कोप बोनांजा है, और ये जो बोनांजा है वो हमें अचीव करना है। ये यहाँ इसीलिए ये इनकम का गोल सबसे ऊपर लिखा है। पर्सनल इनकम हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या अचीव करनी है। तो आप लिख दिए, सब लोग लिखिए उसको, और उसके लिए क्या सेल्स अचीव करनी है, फिर ये पूरा सिस्टम हमें अपने लिए बनाना है, और इसको फिर हर वीक आपको ट्रैक करना है। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? इस पे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए। पूछो। तो वेरी गुड। तो अब आप लोग को ये चीज हमें 25 नवंबर तक ईमेल करनी है, ये पूरे ही प्लान ऑफ एक्शन जो मैंने अभी बताया वो आपको ईमेल करना है। तो आई विल गिव माय फीडबैक टू एवरीबॉडी। और ये जो 25 नवंबर, ये लास्ट पॉइंट ही है आज का, इसके बाद हम खत्म कर रहे हैं। 25 नवंबर को आपको अपनी पर्सनल इनकम क्या होनी है, आप इससे आप सेल्स कितने अचीव करोगे, जो वो इनकम आएगा आपके पास। फिर उस सेल्स के लिए आपको कितनी जो है क्लोज करनी होगी, क्लोज के लिए कितनी मीटिंग करनी होगी, और मीटिंग के लिए कितने प्रोस्पेक्ट चाहिए। तो ये सारा आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? सर इसका रिकॉर्डिंग लिंक भी भेज देना ताकि ये टीम जो है मैं संडे को अपने घर पे आराम से बैठ के ये देखे, क्योंकि और हमारे काफी मेंबर्स भी अभी अवेलेबल नहीं है, वो भी अपना देख करके। हाँ ये तो है, मैंने पहले ही कह दिया कि आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, शुरू में मैंने बताया भी था, तो वो मिल जाएगा आपको, परसों तक मिल जाएगा वो रिकॉर्डिंग। और इसका एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, नेक्स्ट मास्टर क्लास है हमारी कनेक्शंस ब्रेक थ्रू की, वो 3 दिसंबर को होगी सेम टाइम पे। तो वो आप लोग सब लोग इनवाइटेड है, so that you get the best of these sessions. तो अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है वो नोट कर सकते हैं,
किसी को पर्सनल अगर क्वेरी हो तो दे कैन फ्रीली गिव मी मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं रिप्लाई क्विकली। तो आई थिंक आज का सेशन मुझे अच्छा लगा, शानदार लगा आपके साथ रह के। अब मुझे एक दो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें